Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 10. Welcome back to another computer lecture from chapter number 1. Today we are going to study about flowchart and we will discuss how many steps it basically involves and why do we draw a flowchart and what kind of symbols are used to draw a flowchart. We will also practice a bit examples of drawing a flow chart against some algorithms, against some problem, and I will advise you what you have to do. Like you have a lot of examples of flow chart in your chapter, which are around 13. So you have to then practice them one by yourself at the end of this lecture. So let's start with today's lecture. But first of all, let's revise a bit what we have studied so far in chapter 1. We have studied about problems like how to define and how to plan its solution. Then we have studied about algorithms, and we have also studied how to create an algorithm and why is it necessary and how it provides you an efficient manner in solving a problem. So today we are going to start with flowchart and we will read. It is a very interesting topic, right? You have to draw symbols, you have the different symbols for different meanings, and you just draw them in a sequence which shows how a problem will be solved. So let's begin with today's lecture. What is a flowchart? It is basically a graphical representation. Graphical representation means that you present a problem in the form of pictures where you use shapes to define operations, like what operations are required to solve that problem. So that is why it is known as a graphical representation of algorithm. Here you see it doesn't define the problem, it says graphical representation of algorithm. So that means when you have a problem, you must have to define its algorithm first, then you will derive flowchart from that algorithm. What you have to do first, you have to define the problem, then you will have to um, define its algorithm, like what it is basically required to solve that problem. When the algorithm is being defined, then you draw a flowchart following that algorithm. What you do in flowchart, you describe operations which are required to solve that problem. And how do you define those operations? You use symbols. क्या करते हैं flowchart में? Graphical representation है जिसमें हम algorithm को लेके चलते हैं और algorithm से ही हम flowchart draw करते हैं. Why do we use a flowchart? We use flowchart to solve a problem in the set of a sequence. सीक्वेंस हमारे पास सिंबल्स के फॉर्म में शो होता है. सिंबल्स के अंदर हम ऑपरेशंस भी शो करते हैं, ठीक है, कि इसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, किस तरीके से होगा. सो बेसिकली जैसे एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन था प्रॉब्लम को डिफाइन करने का, फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज स्टेप्स वी हैव डिफाइंड इन द एल्गोरिथम. What is the importance of flowchart in solving a problem? It illustrates the sequence of operation to be performed to solve a problem in the form of a diagram. आपके पास क्या होता है, जो आपने algorithm define किया होता है, उसी को diagram की form में आपके पास जो है वो शो कर देता है sequence of operations के. ये ऑपरेशन, इसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा. एल्गोरिथम में तो हम स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स के फॉर्म में लिखा होता था. यहाँ पे उसी चीज को हम डायग्राम्स के साथ जो है, शेप के साथ जो है वो डिस्प्ले करेंगे. दैट विल कंबाइनली मेक अ डायग्राम. प्रोग्रामर क्या करता है? he has to draw a flow chart before he starts writing the program in using any programming language. प्रोग्रामर आपके पास एल्गोरिथम को लेके वहां से फ्लो चार्ट डिफाइन करता है, उसको ड्रॉ करता है. उससे क्या होता है कि वो आपके पास जो है प्रॉब्लम को एनालाइज करना और इजी सोल्यूशन बता देता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. लाइक आपके पास एक पहले तो लिखा हुआ स्टेप्स की फॉर्म है. जब फ्लो चार्ट आपने एक डायग्राम एक ड्रॉ कर ली तो आपको एक सीक्वेंस सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा. ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये चीज़ परफॉर्म होगी, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये चीज़ परफॉर्म होगी. तो प्रोग्रामर के लिए इजी हो जाता है कि वो फ्लो चार्ट को जब ड्रॉ कर लेता है तो उसी को लेके वो आगे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखता है. सो दैट इज व्हाई प्रोग्रामर्स यूज दिस फ्लो चार्ट.
हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम। आपके पास जो है कंप्यूटर के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो यू हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम, यू हैव टू फेस सो मेनी एरर्स व्हिच रिजल्ट्स इन प्रॉब्लम फेलियर, कि आपके पास जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, वो उसके अंदर बग्स आ जाते हैं, एरर्स आ जाती हैं। तो उन एरर्स को रिमूव करने के लिए भी हमारे पास फ्लो चार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज हाउ इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in programming language. It helps programmer to analyze and find the easiest way to solve a problem. It helps the programmer to find and remove errors. It helps programmer to make it easy for him or for her to write program in high level language. So let's see what steps are being involved in drawing a flow chart. You must have to follow these steps before drawing a flow chart. उसके अंदर क्या आता है, input to flow chart, के हमारे पास flow chart के अंदर input क्या होगी, what kind of processing is required, either हमने उसके अंदर क्या operation perform करना है। Let's suppose अगर वो 3 numbers को add करने का flow chart है, तो we do know what kind of processing we have to do, we have to add them. Decision to be taken, कि जब आपके पास हमने पीछे एल्गोरिथम्स के अंदर पढ़ा था कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, अगर फॉल्स हो तो इस स्टेप के ऊपर मूव कर जाए, राइट। यू मस्ट रिमेंबर, अगर आपने लेक्चर सुना है तो उसके अंदर हमारे पास जैसे वो ग्रेड्स वाला क्वेश्चन था, जैसे नंबर्स को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन था, कि जिसके अंदर हम देख रहे थे जैसे ग्रेड्स वाले के अंदर कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 होते हैं तो वो उसको ए ग्रेड असाइन कर दे। ए ग्रेड तब असाइन करेगा जब उसका वो कंडीशन ट्रू होगी। तो दिस इज द डिसीजन दैट वी आर टेकिंग बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो हम नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर जो है वो मूव कर रहे थे। सो दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। देन हमारे पास क्या चीज आती है, द आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। हमने इनपुट ले ली, हमने प्रोसेसिंग ले ली, हमने प्रोसेसिंग के बेस पे डिसीजन ले लिया। नाउ वी हैव टू now we have to output the processed result, जो हमारे पास उसका result आया है, we will have to display that on the screen. So these are the basic steps we have to follow before drawing a flow chart. क्या चीज़ हमने जहन में रखनी है कि हमारे flow chart के input क्या है, हमने उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, हमने क्या डिसीजन लेना है किसी भी कंडीशन के बेस पे, और फिर जो हमारे पास रिजल्ट आया है हमने उसको किस तरीके से जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। ओके, यहाँ पे आपके पास इनपुट के अंदर क्या आता है, एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं कि हमारे पास जो है कोई भी अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसके अंदर हम क्या इनपुट ले रहे हैं। जैसे आपके पास अगर एक प्रॉब्लम आती है कि टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जो है वो कन्वर्ट करें, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मौजूद होना चाहिए, हमारे पास वो चीज़ मौजूद होगी तो ही हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट। फिर प्रोसेसिंग की क्या है, जैसे हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट किया था क्यूब का, उसके अंदर हमने क्या किया था, वॉल्यूम के अंदर क्यूब की लेंथ का हमने जो है वो क्यूब ले लिया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इस किस्म की प्रोसेसिंग हमने परफॉर्म की। यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल है इसके अंदर वो जो है एरिया फाइंड आउट कर रहा है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2. So this is the processing that we are going to perform on two values which will be base and height of an area of an triangle. डिसीजन क्या है, डिसीजन आपके पास जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि सीक्वेंस है या सिलेक्शन है अमंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स, के आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, उन चारों में से कोई अगर एक ट्रू होती है तो आप उसकी बेस पे क्या आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। जैसे हम लोगों ने मैंने आपको ग्रेड्स की एग्जांपल दी थी, ग्रेड के एग्जांपल के अंदर क्या था कि स्टूडेंट के मार्क्स, अब उसके 100 में से कोई एक नंबर होगा, ये तो नहीं है कि उसका नंबर 40 से 50 के बीच में भी लाई कर रहा है, 60 to 80 के बीच में भी लाई कर रहा है, 80 से अबव भी है। एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो एक सब्जेक्ट में उसके अंदर 100 में से एक ही फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो 80 प्लस है तो सिर्फ वो 80 वाले क्राइटेरिया के अंदर लाए करेंगे और वही ग्रेड उसको असाइन होगा। तो इस किस्म का डिसीजन हम जो है वो कंडीशन की बेस पे लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। जहाँ पे हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, फॉल्स हो जाती है तो उस केस में भी वो नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर मूव कर जाता है। एंड दैट वुड बी आउटपुट। आउटपुट क्या होगी, आपके पास जो
पूरा फ्लो चार्ट हमने बनाया, जो प्रोसेसिंग उसने की, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, दैट वुड बी योर आउटपुट व्हिच विल बी डिस्प्लेड ऑन द screen. So let's move forward. So far we have studied what is flowchart, what is its important, and what it is required to draw a flowchart. Now moving forward to the flowchart symbols, like what kind of symbols do we have to practice with drawing a flowchart of any algorithm? तो आपके पास 6 सिंबल यूज होते हैं, ठीक है। आपके पास जो है फ्लो लाइन यूज होती है, दैट वुड बी एरो, जो कि कनेक्ट करेगा आपके पास शेप्स को। आगे हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स के लिए आपके पास, स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए आपके पास ओवल शेप यूज होगी, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए, जहां भी हम नंबर्स की इनपुट ले रहे हैं या हमने आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, उसके लिए आपके पास पैरेललोग्राम शेप आपके पास यूज होगी। इफ आई कैन लेट मी यूज दी पेन सो दैट आई कैन मेक इट क्लियर टू यू। ये आपके पास फ्लो लाइन है जो कि डायरेक्शन बताती है। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट में आपके पास ये ओवल शेप है, ठीक है। इसके अंदर हम स्टार्ट भी जब हम ले रहे होंगे तो ओवल शेप के साथ लेंगे, जब स्टॉप करेंगे तब भी हम ओवल शेप के साथ लेंगे, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, जब हमने इनपुट ली 3 नंबर्स तो हम उसके लिए भी ये शेप यूज करेंगे। जब हमने उसकी आउटपुट डिस्प्ले करनी है तब भी हम ये पैरेललोग्राम शेप यूज करेंगे। प्रोसेस, जिसके अंदर हम जब वो फॉर्मूला लेट सपोज जब पुट कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो शेप यूज होगी, उसके लिए आपके पास रेक्टेंगुलर शेप यूज होगी, ठीक है। डिसीजन, जिसकी बेस पे आइदर वो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। जिस 2 नंबर्स का अगर हम कंपैरिजन ले लें, आइदर a इज ग्रेटर देन b या b इज लेस देन a, तो वहां पे भी हमारे पास ये कंडीशन जो है वो, ये वाली सिंबल जो है वो यूज होगा। कनेक्टर क्या होता है कि जब आपके पास एक ही पेज के ऊपर फ्लो चार्ट के मल्टीपल जैसे आउटपुट्स आ रहे हैं, तो उनको हमने कनेक्ट करके एक एक कोई आउटपुट उसकी डिराइव करनी है या एक उसको एक हमने एंड देना है, तो वहां पे हम कनेक्टर यूज करेंगे। एक ही पेज पे अगर हमारे पास फ्लो चार्ट है तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम सिंबल सर्कल यूज करेंगे, एंड वी विल यूज दिस शेप इफ आवर फ्लो चार्ट इज a big and it is moving on to the next page. Okay, now what we have to do is the description of this flow chart symbols. आपके पास flow chart symbols के अंदर सबसे पहले क्या आता है, flow line आती है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसको एरो से शो करते हैं, और हमारे पास ये फ्लो चार्ट के कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है, दैट हाउ दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड। अब हमने सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, तो उनको जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो हम इस एरो के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसको फ्लो लाइन कहा जाता है। देन वी हैव स्टडीड द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, जिसके अंदर, इसके अंदर या तो जब हम स्टार्ट करें तो सिर्फ स्टार्ट लिखेंगे, ये नहीं कि हमने स्टार्ट और स्टॉप इकट्ठा लिख दिया। जब स्टार्ट हमारे पास होगा फ्लो चार्ट का तो हम स्टार्ट लिखेंगे, जब एंड होगा तो इसी शेप के अंदर हम इसको एंड या स्टॉप लिखेंगे। इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास जो है पैरेललोग्राम शेप यूज होगी, ठीक है। इनपुट ऑपरेशन वो होगा जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू होंगी जिनके ऊपर हमने प्रोसेसिंग करनी है, और आउटपुट क्या होगी, उन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, दोनों के लिए हमारे पास ये शेप यूज होगी। प्रोसेसिंग है के अंदर हमारे पास क्या आता है कि जिसके अंदर हम फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, जैसे सम इज इक्वल टू a प्लस बी, एक फॉर्मूला है, ठीक है। प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम वेरिएबल्स के ऊपर, तो हम यहाँ पे उसको प्रोसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाइबल लेंथ, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमने एग्जांपल इसकी की थी। फिर इसी तरीके से जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हमने इनिशियलाइजेशन भी पढ़ी थी, सम इज इक्वल टू 0 या प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 या के इज इक्वल टू 1, जो काउंट करता था वेरिएबल्स के एग्जीक्यूशन को, लेट्स सपोज, तो वो भी हम प्रोसेस के अंदर ही करते हैं इस किस्म की। जहाँ पे वेरिएबल को, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना ना, इनिशियलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन। जहाँ पे हमने किसी को एक वेरिएबल लिया, उसको कोई वैल्यू असाइन की, that means we have initialized that variable. डिसीजन क्या होगा, जब आपके पास वही कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने की, ट्रू होगा तो हम ये वाला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, फॉल्स होगा तो हम इस इंस्ट्रक्शन पे मूव करेंगे, तो दैट वुड बी बेस्ड ऑन दी डिसीजन, योर डिसीजन क्राइटेरिया। इसके लिए आपके पास जो शेप यूज होती है, दैट इज डायमंड शेप, दैट रिप्रेजेंट्स द डिसीजन। तो अब जहाँ पे भी हमने ये शेप्स को देखना है, हमें पता लग जाएगा कि इस शेप के अंदर बेसिकली क्या चीज perform हो रही है। Again, connector symbol that is used to connect the flow chart with another part of your flow chart, ठीक है। So here we are done with the symbols of flow chart. So let's practice a flow chart. Like how do we actually draw a flow chart using these symbols? So let's get back to the first problem we are being studying so far, जिसका हमने algorithm भी define किया था
क्या प्रॉब्लम थी हमारे पास, लाइक वी हैव टू फाइंड द सम प्रोडक्ट इन एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। हमने क्या करना है, 5 नंबर लेने हैं, उनका सम फाइंड आउट करना है, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। रिमेंबर वी हैव क्रिएटेड एल्गोरिदम फर्स्ट। हम इसका एल्गोरिदम पहले बना चुके हैं, उसी को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। सो हमने पहले क्या करना है, उसके अंदर स्टार्ट था, फ्लो चार्ट पे आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल यूज होता है, ओवल शेप, ठीक है। तो वी विल ड्रा एन ओवल शेप वेयर इट इज क्लियरली रिटन दैट इज योर स्टार्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अगली दूसरी शेप जो है वो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके साथ क्या करेंगे, हम कनेक्टर यूज करेंगे, दैट वुड बी द एरो लाइन वी हैव स्टडीड। जो एरो लाइन है वो हमारे पास क्या करेगी, शेप को कनेक्ट करेगी। स्टार्ट हमने ले लिया, उसके बाद हमें क्या चाहिए थी इसके, अगर एल्गोरिदम में आपको याद हो, आप इसकी बुक साथ रख सकते हैं जिसके अंदर ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमने इनपुट ली थी, हमने 5 नंबर की इनपुट ली थी। इनपुट के लिए हमने कौन सी शेप पढ़ी थी, पैरेललोग्राम। सो वी विल यूज पैरेललोग्राम in which we have taken input of 5 number. Those number could be A, B, C, D, E, F, जो भी हमारे पास है। अच्छा सीक्वेंस से मैंने नहीं लिखे, मे बी आई हैव मिस्ड वन नंबर। ओके, अच्छा जी, सी इसके अंदर नहीं लिखा, लेट मी करेक्ट दैट, क्योंकि फिर जो है वो बच्चों को कंफ्यूजन होगी कौन से हम सीक्वेंस के साथ ले रहे थे, क्योंकि आगे मैंने जो है वो डी यूज किया हुआ है। हमने 5 नंबर ले लिए, कौन कौन से, ए बी सी एंड डी। तो हमने क्या किया, स्टार्ट लिया, उसको उसके बाद हमने इनपुट ली, दोनों शेप्स को हमने उसके साथ एरो के साथ जो है वो फ्लो लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब क्या होगा, अब हमने उनके ऊपर अगली चीज क्या की थी, प्रोसेसिंग की थी, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए हमने कौन सी शेप की बात की, रेक्टेंगुलर शेप। तो हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगुलर शेप, और उसके अंदर जो भी हम प्रोसेसिंग करेंगे, सम हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो सम के अंदर तमाम नंबर्स को ऐड कर देना था, हमने ऐड कर दिया। ओके, आई हैव टेकन 6 नंबर्स। बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो हम इसको 5 नंबर्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 5 नंबर के वेरिएबल को लेके चल रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स मैंने लिखे हुए थे, आई जस्ट हैव करेक्टेड दैट। ओके, हम कहाँ पर थे, प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम प्रोसेसिंग के ऊपर थे। प्रोसेसिंग में हमने सम ले लिया, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट में हमने पांचों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज विच व्हाट इज, कि हम सम को जो है वो टोटल नंबर से के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ तक प्रोसेसिंग होगी। अब हमने अगला स्टेप इसके अंदर क्या था, आउटपुट। तो आउटपुट के लिए हमारे पास अगेन कौन सी शेप यूज होगी, पैरेललोग्राम। सो वी विल आउटपुट द सम प्रोडक्ट इन एवरेज, ठीक है। समझ आ रही होगी आप लोगों को। सो सी दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट होगी। नाउ वी विल एंड दिस एल्गोरिदम एंड दिस फ्लो चार्ट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे भी अगर आप एल्गोरिदम को देखें, तो जब आपके पास प्रोसेसिंग हो गई थी, आउटपुट हमारे पास फाइंड आउट हो गई थी, सम प्रोडक्ट इन एवरेज, तो हमने क्या किया था, उस फ्लो चार्ट को एंड कर दिया था। सो दिस इज हाउ वी ड्रा अ फ्लो चार्ट। हमने स्टार्ट लिया, उसके बाद हमने फ्लो एल्गोरिदम में देखा, एल्गोरिदम में हमने इनपुट ली हुई थी, तो हमने यहाँ पे भी 5 नंबर्स की इनपुट ले ली, विच यूजिंग विच शेप, using parallelogram shape. Then we see that we have moved forward on the processing step in the algorithm. So we have done the same here. हमने रेक्टेंगुलर शेप ली, उसके अंदर हमने प्रोसेसिंग की, यानी जो हम कैलकुलेशंस करना चाह रहे थे वो कैलकुलेशंस इसके अंदर हमने की। और उसके बाद हमने क्या किया, जब कैलकुलेशन हो गई तो हमने उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि डिस्प्ले मीन्स योर आउटपुट, और आउटपुट के लिए हमने कौन सी शेप पढ़ी थी, पैरेललोग्राम। नाउ वी हैव displayed the sum product and average using parallelogram shape. Here we can see, अगर आप लोगों को shapes की understanding हो गई है, we can clearly see where processing is being done, where input is being taken, where output is being displayed, and where our flow chart has ended. जैसे आपके पास जो blue shape है, ये हमें पता लग रहा है rectangular है, it means कि ये processing, ये yellow shape है, that means it is a parallelogram, so it obviously must be showing some input or output. So this is a flow chart of a simple program. Let's practice another one जहाँ पे हमारे पास एक और example है कि draw a flow chart to find largest of 3 unequal numbers. 3 numbers है, हमने उसमें से find out करना है सबसे बड़ा number कौन सा है. What we will do, we will definitely start the
फ्लो चार्ट स्टार्ट सिंबल के साथ लेंगे, उसके बाद ठीक है इसके फ्लो चार्ट के अंदर इसका जो एल्गोरिदम था, सॉरी, उसके अंदर हमने क्या किया था, दूसरा स्टेप जो है वो 3 नंबर्स की इनपुट लेनी है, तो वो विल जस्ट राइट इन अ पैरेललोग्राम शेप के इनपुट 3 नंबर्स, दोज नंबर्स कुड बी ABCDEF, कुछ भी कोई भी अल्फाबेट इसमें से हो सकते हैं। हमने 3 नंबर्स ले लिए A B and C। नाउ व्हाट विल वी डू, यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं थी, अगर आपको याद हो इसके अंदर हम कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई डिवीजन, कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं कर रहे थे, कोई एवरेज फाइंड आउट नहीं कर रहे थे, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने सिंपल नंबर्स को कंपेयर किया था, कि हमने कहा था कि अगर A ग्रेटर है B से और A ग्रेटर है C से तो क्या डिस्प्ले कर दे, A को डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज वो क्या करे, दूसरी कंडीशन के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिसीजन मेकिंग आ रही है कि अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आंसर होना चाहिए, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या होना चाहिए। सो हेयर डिसीजन मेकिंग इज बीइंग डन। तो हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी शेप यूज करेंगे, वो विल बी यूजिंग डायमंड शेप, जिसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। हमारे पास क्या कंडीशन है, हम ए को पहले बी से कंपेयर करेंगे और साथ ही हम ए को सी से भी कंपेयर करें। दोनों सूत्रों में अगर ए हमारे पास ट्रू होगा तो हमारे पास एक आंसर आएगा, अगर फॉल्स होगा तो हमारे पास हम दूसरी कंडीशन पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हमने वेरिएबल्स ले लिया, हमने ए को बी के साथ कंपेयर किया और हमने ए को सी के साथ भी, अगर ए इन दोनों से बड़ा है। अब यहाँ पे इस डिसीजन की बेस पे दो वैल्यूज आपके पास रख सकते हैं, या तो ये कंडीशन आपके पास जो है वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल आंसर ये या तो ए बी से भी बड़ा होगा या ए से भी बड़ा, सी से भी बड़ा होगा, या वो दोनों में से छोटा होगा या किसी एक से छोटा होगा, ठीक है। कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो अगर तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है, अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, वैल्यू जो भी है ए की हमारी, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले कर दे, ए को डिस्प्ले कर दे। अदरवाइज अगर तो हमारे पास नो होता है, यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन पे मूव कर जाएंगे, जिसके अंदर हम बी को अब कंपेयर करेंगे, बी को ए और सी से हम कंपेयर करेंगे। अगेन उसकी भी दो पॉसिबिलिटीज है, कंपैरिजन आ गया ना, कंपैरिजन की बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि हमने क्या डिस्प्ले करना है, तो इस वजह से हम डायमंड शेप यूज करें। अगेन इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर द कंडीशन विल बी ट्रू और द कंडीशन विल बी फॉल्स। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है, व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली डिस्प्ले बी। तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दो ए को भी हमने कंपेयर कर लिया, बी को भी कंपेयर कर लिया, दोनों अगर वो फॉल्स हो गए तो ऑब्वियसली पीछे सी वेरिएबल सिर्फ बच जाता है, तो सी को हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वी अल्टीमेटली नो दैट अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली इट वुड बी सी। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, सी को डिस्प्ले करवा देंगे। नाउ यू कैन सी वी हैव 3 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि हमारे पास आउटपुट के फॉर्म में आ रही है, कि आउटपुट अगर ए आती है तब भी प्रोग्राम एंड हो जाए, नहीं बी आती है तब भी प्रोग्राम एंड होगा, सी आती है तो तब भी प्रोग्राम एंड होगा। तो हम यहाँ पे हर आउटपुट के अगेंस्ट अलग से स्टॉप वाला जो है वो सिंबल नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप को हम वन टाइम ही यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि तीनों सूरतों में अगर सी आती है तब भी प्रोग्राम एंड होगा, बी अगर आउटपुट आती है तब भी प्रोग्राम एंड होगा, ए आती है हमारे पास आउटपुट तब भी प्रोग्राम एंड होगा, तो मल्टीपल कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ गई, जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के ट्रू होने की बेस पे एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे हम इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर देंगे, यहाँ पे हम कनेक्टर यूज करेंगे और इन तीनों सिचुएशंस को हम कनेक्ट करके हम क्या कर देंगे, स्टॉप के साथ ले जाएंगे, ताकि हमें एक ही दफा प्रोग्राम को एंड करना पड़े। ये ना हो कि हम अलग से जब आउटपुट ए आई तब भी प्रोग्राम को स्टॉप कर रहे हैं, फिर दूसरी कंडीशन पे जब आउटपुट बी आ रही है तब भी प्रोग्राम को स्टॉप कर रहे हैं, सी आ रही है तब भी अलग से हमने लाइंस लगा के स्टॉप वाला सिंबल बनाया हुआ है। नो, जब आपके पास इस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ जाए जिनका जो मेन चीज मेन जो उसका फोकस है वो एक ही है, जैसे उस प्रोग्राम में एंड ये होना है, तो देयर वी विल यूज अ कनेक्टर एंड वी विल कंबाइन दोस स्टेटमेंट्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये चीज समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमने पिछले प्रोग्राम में हमने कनेक्टर नहीं यूज किया था, हमने डिसीजन मेकिंग वाला नहीं यूज किया था, अब हमने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी यूज कर लिया, हमने कनेक्टर भी यूज कर लिया, हमने देख लिया किस तरीके से डिसीजन अगर हमारे पास ट्रू या फॉल्स होती है तो हमारे पास आंसर उसकी बेस पर क्या आता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव अ होम टास्क ऑब्वियसली। इसके अंदर आपने जो है वो क्या करना है, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, जिसके अंदर आपने स्मॉलेस्ट नंबर डिस्प्ले करना है अमंग 4 वैल्यूज। इट इज नॉट एनी डिफिकल्ट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ इट्स एल्गोरिथम फर्स्ट। पहले आपने प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, उसका एल्गोरिथम डिफाइन करना है, उसके बाद
आपने उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। डायरेक्टली फ्लो चार्ट अगर आप बनाने बैठ जाएंगे तो यू वोंट गेट अ राइट आंसर। आपको मैंने ये पहले भी असाइनमेंट दी हुई है कि स्मॉलेस्ट नंबर का आपने एल्गोरिथम ड्रॉ करना है। इफ यू हैव डन दैट देन इट्स नथिंग फॉर यू, इट्स सो इजी। आपने इसकी असाइनमेंट जो है ये करनी है एंड यू हैव टू सबमिट दैट इन 24 आवर्स। मोर ओवर आपके पास नेक्स्ट डे क्लास नहीं है, you have to have a look on the algorithms which are on the flow charts which are given in your book. मैं आप लोगों को यहाँ मैंने वर्किंग उसकी समझा दी है। हमने उनके एल्गोरिथम्स भी वन बाय वन सारे समझ लिए थे। अब उसी चीज़ को उसने फ्लो चार्ट के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। यू हैव टू डू दैट बाय योरसेल्फ। असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है। इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्विटी और एनी क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आप लोग को समझ नहीं आई, आप लोग लेक्चर दोबारा से देखें। आई होप दिस इज द इजीएस्ट वन और आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। You have to submit the home assignment, right? You have to submit the home task within 24 hours. That is necessary to mark your attendance. That's all for today. Have a good day ahead. Stay blessed and Allah Hafiz.